اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے پیاروں کے ذکر کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، اس محفل میں سرور بھی ہے، اس محفل میں گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ دوستو، اس محفل کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے میں محفل پاک کا آغاز کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان ملک پاکستان کی بہت ہی خوبصورت آواز تشریف فرما ہیں، مرکز نمبر 15 کے خلیفہ ہیں جناب محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے منور فرمائیں۔ جناب محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد منظور احمد قلبی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے منور فرما رہے تھے۔ دوستوں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کی محفل میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے اچھے نصیب کی بات ہے۔ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہی شخص اس محفل میں آ کے بیٹھتا ہے۔ تو میں محفل پاک کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ہمارے درمیان نعت کے لیے جناب محمد ریحان قلبی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول اللہ مقبول پیش کریں اور ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور فرمائیں۔ جناب محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب، کیا اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار مدینہ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت گرامی قدر جن جگہوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آج میرے رب نے محمد آصف قلبی جو خلیفہ ہیں ہمارے مراکز کے، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے گھر پہ خاص اپنا کرم کیا ہے کہ انہوں نے آج اپنے گھر میں سرکار کی محفل سجائی ہے، رب کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ حضرت گرامی قدر دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی محمد آصف کو اور بھائی محمد سلیم کے درجہ نعت محبوب کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کونین نے قرآن ہر سورہ کو، رب کونین نے قرآن ہر سورہ کو نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر قرآن پاک کا بے نظیر عمیق مطالعہ کریں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے نازل فرمایا ہے۔ پھر میں علم کی بات کروں گا۔ پتہ اے دسیا رفعتن دی پاک آیت نے، پتہ دسیا رفعتن دی پاک آیت نے، ہے شان ہوندہ ودھیرا مدینے والے دا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار کے چہرہ اطہر ذکر کرتے ہیں اور اپنی التجا پیش کرتے ہیں، کہندے نے تیرے والفجر چہرے تو میں صدقے، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے والفجر چہرے تو میں صدقے، سبحان اللہ۔ کدی سفنے دے وچ مکھڑا وکھا دے، سبحان اللہ۔ اور ان کے وما ینتقو عن الہوا، ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان کی کہ ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا، بات حقیقی ہے گویا کلام آپ کا۔ سبحان اللہ۔ اور حسن محبوب کو آیات قرآنیہ کے حوالے سے علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ والفجر جبین، میرے آقا دی والفجر جبین، والشمس عارض، سبحان اللہ۔ پر کیف نظر، سبحان اللہ۔ گیسو تا، سبحان اللہ۔ والنجم دی مانگ، سبحان اللہ۔ زلفاں وچ سبحان اللہ۔ یاسین لقب، اللہ۔ نشرہ سینہ، سبحان اللہ۔ آبرو نے کعب کوسین خمدار محمد عربی دے، سبحان اللہ۔ ہاتھ پاک ید اللہ، لب یوہا مذاق دیا اکھیاں، سبحان اللہ۔ وچ ڈورے، اللہ اللہ۔ کدی چن توڑے، اللہ۔ کدی چن جوڑے، سبحان اللہ۔ موڑے سورج نو، اللہ۔ رکھ نال اشارے دے توڑے، نہ لین گئی سی عرشہ تو لنگ پار محمد عربی دے۔ حضرت گرامی قدر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے عظمت پوچھنی ہے تو قرآن پاک سے پوچھو، نہ پوچھو فرشتوں سے، نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ اور پھر کیوں قرآن، اور پھر قرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یوں بھی کریں کہ وہی یوہا کہہ کے رب نے وچ قرآن مقدس دے، ہر گل نو ذمے اپنے لائی میرے کملے والے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، شان ہی کملی والے کی ہے، انہی کے صدقے یہ سارے میلے لگے ہوئے ہیں۔ میں آج کی پنڈال میں دعوت بھی دوں گا اور وہ خوش آمدید بھی کہوں گا محمد سلیم صاحب کو، جو کہ آج کے ماشاءاللہ بانی محفل بھی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت گرامی قدر اب میں وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے ثنا خاں بھی ہیں، سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشی بھی ہیں، محترم سید اسد علی قلبی صاحب گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا الاجبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم سید اسد علی قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
تمام حاضر محفل کو بانی محفل کو سماعت کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے دل دبا کر ذرا پیش کر لیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے دوارے دیا میں سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے دوارے دیا چار بیٹھل بھڑی
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत गर्मी कदर ये थे सैयदज़ादे मोहतरम सैयद असद अली कल्बी साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सबका सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रत गर्मी कदर सरकारी मदीना की शान में नाते पढ़ी जा रही हैं। खुश नसीबों को ये मुकाम हासिल होता है। सुनने वालों के दर्जे बुलंद हो रहे हैं, पढ़ने वालों की शानें बुलंद हो रही हैं। जो आफात आनी थी वो आफात टाली जा रही हैं। हजूर का जिक्र तकालीफ दूर करता है, परेशानियां दूर करता है। हज़रत गर्मी कदर हम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम की हदीया पेश करते हैं या हम नाते पढ़ते हैं तो ये सब इसलिए नहीं कि उन्हें हमारी नातों की ज़रूरत है, हरगिज़ नहीं, बल्कि सरकार का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि ये जिक्र हमें बरकतें और नूर अता करता है। सरकार का जिक्र हमारा मोहताज नहीं, क्योंकि ये तो वो जिक्र है जिसको अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया है। हम दुरूद पढ़ते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि दुरूद पाक के सदक़े से हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला नेमत अता फरमाता है। और हदीस पाक के मुताबिक रोज़े हशर भी दुरूद पाक के सदक़े से मुसलमानों को निजात हासिल होगी। हज़रत गर्मी कदर तो मैं बात कर रहा हूँ सरकारी मदीना की अज़मत की। अगर हम सरकार के मौज़ात पर बात करें तो समय लगेगा तो कहिएगा सुबहान अल्लाह। हमारे नबी वो हैं जिनको सबसे ज़्यादा मौज़ात अता फरमाए, सुबहान अल्लाह। हज़रत गर्मी कदर मौज़ा रसूल की बात हो रही थी। मौज़ा किसे कहते हैं? मौज़ा कहते हैं जो अक्ल को आजिज़ कर दे। जहाँ अक्ल की परवाज़ ख़त्म हो जाती है वहाँ मौज़े की इब्तिदा होती है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मौज़ात अता हुए हैं। हर नबी को मौज़ा मिला, हर रसूल को मौज़ा मिला, हर पैगंबर को मौज़ा मिला। किसी को एक मौज़ा मिला, किसी को दो मौज़े मिले। हज़रत गर्मी कदर किसी को 3 मौज़े मिले। हमारे नबी को मौज़े मिले, मगर हर नबी को इतने नबी आए, हर नबी को मौज़े मिले मगर गिनती के। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने आपको 1-2 मौज़ात नहीं दिए, बल्कि आपको अनगिनत मौज़ात अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कुछ उलमा किराम फरमाते हैं कि सरकार को 1000 मौज़ात हुए, 1100 मौज़ात हुए, 12 जगह पे 1200 मौज़ात का बताया गया है। हज़रत गर्मी कदर बल्कि आपकी हर अदा में मौज़ा रखा गया। मसला यह है कि जब नबी मौज़ा दिखाता है तो उसके दराजात बुलंद होते हैं। जब वली करामत दिखाता है तो उसका दर्जा कम कर दिया जाता है, नबी का दर्जा बुलंद किया जाता है। नबी को हुक्म है कि मौज़ा दिखाओ, वली को हुक्म है करामत छुपाओ। इसलिए वली करामात छुपाते रहे, अशद ज़रूरत के तहत करामात दिखाई गई, मगर नबी मौज़े छुपाते नहीं बल्कि मौज़ात दिखाते रहे। हज़रत गर्मी कदर चूँकि सबसे ज़्यादा बुलंदियाँ सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, इसीलिए सबसे ज़्यादा मौज़ात भी आप ही को अता किए गए और आप सबसे ज़्यादा मौज़ात आपने दिखाए। हज़रत गर्मी कदर यहाँ एक लतीफ़ नुक्ता अर्ज़ करता हूँ, अक्ल और मुकाम रसूल। बाज़ लोग सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व अज़मत को अपनी अक्ल के पैमाने से नापते हैं। इनसे मैं कहता हूँ अपनी अक्ल से मुस्तफ़ा के मुकाम को नापने की कोशिश ना करो। तुम्हारी अक्लें छोटी हैं, मुस्तफ़ा का मुकाम बड़ा है। तुम्हारी सोच महदूद है, मुस्तफ़ा का मुकाम लामहदूद है। तुम्हारे फहम की हद है और मुस्तफ़ा की शान बेहद है। इसलिए लेकिन क्या है, मुस्तफ़ा का सिफाती नाम है। क्या है? मुस्तफ़ा का सिफाती नाम है। हामीम क्या है? मुस्तफ़ा का सिफाती नाम है। क्या यासीन का मतलब जानते हो? क्या ता का मतलब जानते हो? क्या हामीम
تعظیم کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں، کوئی مولوی ان کے معنی سے واقف نہیں، کوئی محدث ان کے معنی سے واقف نہیں، کوئی مفسران ان کے معنی سے واقف نہیں، کوئی لغات والا ان کے معنی سے واقف نہیں، کوئی عالم ان کے معنی سے واقف نہیں، کوئی شاعر ان کے معنی سے واقف نہیں۔ ارے جس ہستی کے صفاتی نام تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، وہ ذات تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں ان کو سوچو مت، انہیں مان لو۔ مان لینے میں ہی مراد ہے، بیڑا پار ہے۔ ان سے عشق کرو، عقل سے سوچو مت، کیونکہ جس نے عقل سے سوچا وہ ابو جہل بن گیا، اور جس نے عشق سے مانا وہ صدیق اکبر بن گئے۔ ارے جس نے عقل سے سوچا وہ ابو لہب بن گیا، اور جس نے عشق سے مانا وہ فاروق اعظم بن گئے۔ ارے جس نے عقل سے سوچا وہ عتبہ بن گیا، جس نے عشق سے مانا وہ عثمان غنی بن گئے۔ ارے جس نے عقل سے سوچا شیبہ بن گیا، اور جس نے عشق سے مانا وہ ابو ذر غفاری بن گئے۔ ارے جس نے عقل سے سوچا وہ امیہ بن خلف بن گیا، اور جس نے عشق سے مانا وہ حضرت بلال بن گئے۔ ارے جس نے عقل سے سوچا وہ کافر رہا، اور جس نے عشق سے مانا وہ مومن بن گیا۔ ایمان والے ان کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو سوچتے نہیں۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام ان کا کوئی سوچے تو کیسے، خرد کی حد میں وہ آتے کہاں ہیں، اور ایک جگہ کہتے ہیں وہی اول ہیں، آخر بھی وہی ہیں، وہی ظاہر وہی سر نہاں ہیں۔ سمیٹو عقل کے دامن کو سائم، وہ حد عقل میں آتے کہاں ہیں۔ حضرت گرامی قدر میرے آقا کی بڑی شان ہے، میرے آقا کی بڑی عظمت ہے۔ انہیں کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کرنے کے لیے وطن عزیز کی ایک اور مشہور و معروف آواز کو میں دعوت دوں گا۔ ہمارے درمیان مرکز نمبر 15 کے خلیفہ جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے۔ جناب منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تب بہکم جاوے دے طیبہ میں
ذکر کی میں چاند اشارہ پیش کروں گا آخر میں مرشد کے حوالے سے جی انشاءاللہ محبت سے سماعت کرو اللہ
Shut
अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत गमी कदर ये थे वतन अजीज़ की बड़ी मशहूर आवाज़ जनाब मोहम्मद मंजूर अहमद कल्बी साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रत गमी कदर अगर चश्मे करम की बात करूँ, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम की क्या बात है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। आपकी निगाह करम जिस पर बरसी उसका बेड़ा पार हो गया। हज़रत इलामा साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हजूर की नज़र करम होती है तो क्या होता है। जिन्ना दे पईयां नजरा रब दे हबीब दियां मदनी करीम दियां जग दे तबीब दियां। कोई हजरत अवैस बन गए, कोई हजरत बिलाल बन गए। उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। वो निगाहे करो जिसने अरब के बुद्धों को बादशाह बना दिया। वो निगाहे करो जिस पर पड़ी बेदम को दम दे दिया, बेशऊर को शऊर दे दिया, बेचारे का चारा कर दिया, बेनूर को नूर दे दिया, अरे बेसरूर को सरूर दे दिया, गुलाम को सरदार कर दिया, बेफन को फनकार कर दिया, बेआसरा को शाहकार कर दिया, अरे बेदिल को दिलदार कर दिया। उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। अगर जर्रे पर निगाह हुई तो उसे चांद से भी रोशन कर दिया। शबे कदर दी लवे पना आके मेरे सोने दी जुल्फ से हाथ ले, जर्रे सूरज तो वध के चमक उठे कमली वाले दे आके निगाह थले। हज़रत गमी कदर मेरे नबी की क्या शान है, क्यों ना कहूँ कि उस निगाह अनायत पर लाखों सलाम। मेरे नबी दी हुई निगाह जिस दम आके मन के कच दे सुचे गोहर हो गए, कतरे बने दरिया आफ्ताब जर्रे उते खार जो सन गुले तर हो गए। पानी रहमता वाला से छिड़किया जब सुखे होए भी फल दार शजर हो गए। केड़ी केड़ी मैं भला तारीफ दसा है सन बेजर जो अबू जर हो गए। उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। जिसने जर्रों को जर कर दिया, जिसने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, जिसने कतरों को देखा तो गोहर कर दिया, जिसने हबशी को रश्के कमर कर दिया, अरे उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। हज़रत गमी कदर आपकी नजर अनायत से ही हमारा बेड़ा पार होगा। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने खूब शेर लिखा कि दीन क्या है तेरी उल्फत के सिवा, दीन का बस एक यही मेयार है। तू नजर फेरे तो तूफान जिंदगी, तू नजर कर दे तो बेड़ा पार है। और हज़रत इलामा साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार की नजर कमाल का कमाल बड़े ही बाकमाल अंदाज में बयान किया कि हूँ बिलाल व सलमान या हारसा या अली उमर या खुबैब हो, तेरी एक नजर का कमाल है कि नसीब सबके बदल गए। फिर क्यों ना कहूँ उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। हज़रत गमी कदर सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि फरिश्तों पर भी हुई। मेराज की रात फरिश्तों को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ भी फरमाया और उन पर नजर करम भी फरमाई। मेराज की रात है, सितारे डूब कर उभर रहे हैं और मंजर क्या है, हूरां सेरे गांदियां आइयां, जुल्फा रस्तियां विच वछाइयां, कस्तूरी दे हुले आउण, खुशबुआं दे बुले आउण, तारे डुब डुब तरदे जांदे, कुदसी सजदे करदे जांदे, लगदा जेड़ा रावां सोहना अरबी शाह असवार गया। नजरे करम दी करके सोहना सब दे बेड़े तार गया। फिर उस निगाहे अनायत पर लाखों सलाम। ये वो चश्मे करम है जो सिर्फ इंसानों या फरिश्तों पर ही नहीं हुई बल्कि जानवरों पर भी निगाहे करम हुई। और सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी दुख दूर कर दिए, उनकी भी मुश्किलें कुशाई फरमाई। ज़ात गिरामी के अंदर मेरे आका लजपाल की बड़ी शान है। हम खुश नसीब हैं कि हम उनके उम्मती हैं।
تو چلیے وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب گزارش کروں گا. آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے. جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ
सुभान अल्लाह। ये थी वतन अजीज़ की बड़ी मशहूर और मारूफ आवाज़ और सिलसिला रूह कल्बी के गद्दी नशी मोहतरम सैयद वकास अली कल्बी साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अब वक्त हो जाता है अल्लाह का जिक्र। ये जिन बस्ती में हो जाए वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। हज़रत गर्मी कदर इरशादे बारी ताला है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। फज़कुरूनी फरमाकर रब कायनात ने अपने बंदों को आगाह किया कि ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूं। तू मेरी तौसीफ कर, मैं तेरी तौसीफ करूं। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूं। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तू मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम लूं। अल्लाह क्या खूब कहता है, तू मुझे मौला कह, मैं तुझे बंदा कहूँ। तू मुझे अपना कह, मैं तुझे अपना कहूँ। अल्लाह की मोहब्बत देख रहे हैं कि वो किस तरह बंदे से मोहब्बत फरमाता है। कहाँ उसकी ज़ात, कहाँ हमारी औकात। देखो तो सही अपने बंदों से कैसे मोहब्बत फरमाता है। और मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँ। तू अल्लाह अल्लाह कहकर मेरी अलूहियत के डंके बजाता रह और मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता रह। ये मेरे रब की मोहब्बत है अपने बंदों के साथ। कदर मोहब्बत इलाही क्या होती है, कुरान में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, तर्जुमा आपके सामने बयान करता हूँ। और ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। यानी अहले ईमान की पहचान अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान की जान अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान के दिल का सरूर अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान की आंखों का नूर अल्लाह की मोहब्बत। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदा मोमिन को ये पैगाम दे रहे हैं कि बंदा मोमिन तू मुहिब बन जा, मुझे महबूब बना ले। तू तालिब बन जा, मुझे मतलूब बना ले। अरे तू मेरा आशिक बन जा, मुझे माशूक बना। तू साजिद बन जा, मुझे मसजूद बना ले। तू हामिद बन जा, मुझे महमूद बना ले। तू वासिफ बन जा, मुझे मौसूफ बना ले। और ए बंदा मोमिन, अल्लाह कहता है ए बंदा मोमिन तू दिल की छोटी सी नगरी में मुझे बसा कर तो देख, मैं तुझे जन्नत के वसी बागों में ना बसा दूं तो फिर कहता अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये आयत करीमा हमें पैगाम सुना रही है कि ए रब्बे कायनात की हर चीज़ तेरे वजूद की खबर दे रही है। तेरी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। अहले ईमान वालों को हर चीज में तेरी जात का जलवा नजर आता है। यानी अल्लाह चमकते हुए सितारों में तू, अल्लाह दमकते हुए सियारों में तू, कहकशाओं की झुलमलाहट में तू, कौसारों की रिफत में तू, बहारों की राहत में तू, कलियों के तबस्सुम में तू, अनादिल के तरन्नुम में तू, रे सूरज की किरणों में तू, चांद की ज़ियाओं में तू, फलक की नीलाहट में तू, फजाओं की सरसराहट में तू, चमनस्तानों में, गुलों में तू, पत्तों में, कलियों में तू। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि जग में आकर इधर उधर देखा तो वही फिर तू ही नजर आया जिधर देखा। आखिरी बात करूंगा, इत्मीनान कल्ब का सामान क्या होता है। सुकून अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत है। जो शख्स सुकून और राहत से अगर महरूम कर दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी यकीनन अजीरन बन के रह जाती है। इंसान हमेशा तस्कीन और राहत की तलाश में मारा मारा फिरता है। आइए देखते हैं कि सुकून और इत्मीनान का बेहतरीन वाह जरिया क्या है। इरशाद रब्बानी है इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये आयत करीमा हमें आगाह कर रही है कि ए लोगों याद रखो, दिलों की राहत ना सुबह के बसेरे में है, ना शाम के अंधेरे में है, ना बहारों के ज़मानों में है, ना आरामदेह ठिकानों में है, ना खलवत में, ना तन्हाइयों में, ना जलवत में, ना रोनाइयों में, ना माल में, ना दौलत में, ना मनसब में, ना हुकूमत में, ना खूबसूरत इमारतों में, ना नरमो नाजुक बिस्तरों में, ना गुल में, ना कली में, ना अतर में। अरे दिलों की राहत है तो बस फकत अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। तो चलिए हज़रात गिरामी कदर अल्लाह का जिक्र होगा। सबसे पहले बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی طاہر 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 اللہم صلی وسلم کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ پاک ہے تو گواہی دیجئے سبحان اللہ 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 جدھر دیکھو اللہ جدھر سوچو اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر سو ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کے لیے بے شک تو گواہی دیجئے الحمدللہ 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 الحمدللہ
Ya
जलाली वल इकराम या जुल जलाली वल इकराम आखिरी जिक्र दुरूद पाक दुआ खैर सलाम दुआ खैर हो जाएगी तो पुकारिए इस तरह के जिस तरह ज़मीन बोले अल्लाह अरश बोले अल्लाह फरश बोले अल्लाह कमर बोले अल्लाह शमस बोले अल्लाह बकर बोले अल्लाह उमर बोले अल्लाह उस्मान बोले अल्लाह अली बोले अल्लाह हसन बोले अल्लाह हुसैन बोले अल्लाह मोहम्मद बोले अदब के साथ सलाम कर जाइए उसके बाद इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पैदा को सलाम शमाए बज़ में
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए ज़मीन और आसमां के मालिक, ए हर अर्श को क्या खूब सजाने वाले, ए ज़मीन की तह में समंदर चलाने वाले, ए दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले, ए बंद पत्थरों में कीड़ों को रिज़्क़ पहुँचाने वाले, ए लफ्ज़ कुन बोल कर जहानों पर जहां बना देने वाले, ए दुआ करने से पहले ही सुन लेने वाले। हम सब भिखारी तेरी बारगाह में आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाए हुए हैं। हम सब के ये आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। या इलाही, आज के बाबरकत महफ़िल में कुरान की तिलावत की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाते मकबूल पेश की गई। महफ़िल के दौरान नकाबत में तेरे और तेरे प्यारे महबूब की शान बुलंद की गई। या अल्लाह, तेरा अज़मत वाला, बरकत वाला, शान और शौकत वाला ज़िक्र अज़ीम किया गया और आखिर में दुरूद और सलाम पढ़ा गया। सारी की सारी पढ़ाई को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। पढ़ने वालों से, सुनने वालों से कहीं भूल जो खता हो गई हो तो माफ़ी के तलबगार हैं। या इलाही माफ़ फरमा। या रब्बुल शकरीम तो रहीम करीम अज़ीम है। या अल्लाह, ये जिस जगह पर महफ़िल पाक हो रही है, अल्लाह इन घर वालों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमा। या अल्लाह, तमाम जो हमने महफ़िल पढ़ी उसका जुमला सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतन, तोफ़तन, अक़ीदतन, एहतरामन मिलकर पेश करते हैं। पेश करना कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमत के सदके, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके, या इलाही हज़रत आदम सलाम से लेकर जितने को दुनिया फ़ानी जा चुके सबकी बारगाह में सिलसिला रूह कल्बी के तमाम बुजुर्गों की बारगाह पेश करते हैं, पहुँचाकर सबके दराजात और मकामात में आलिशान इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह सबके दर से रहमतों वाला, बरकतों वाला, शान और शौकत वाला या इलाही फैज़ान जारी व सारी फरमा। उनके फैज़ से कुल नेक उम्मत मुसलमान का फैज़ याबी और तमाम हाज़रीन महफ़िल पर या अल्लाह नाज़रीन पर सब उनका फैज़ान जारी व सारी फरमा। या इलाही, उम्मत मुसलमान दुनिया फ़ानी जा चुके, या परवरदिगार हाज़रीन महफ़िल नाज़रीन के कोई दुनिया फ़ानी, जो लोग दुनिया फ़ानी जा चुके, या अगर जनाब आसिफ भाई घर के जो लोग दुनिया फ़ानी जा चुके, अगर या कोई अजीज़ कारम में से जो लोग दुनिया फ़ानी जा चुके, सलीम भाई के अगर कोई अजीज़ कारम में जो लोग दुनिया फ़ानी जा चुके, सबकी बारगाह में तमाम बरकत महफ़िल को जुमला सवाब पेश करते हैं, पहुँचाकर सबकी कब्रों में हद नज़र ठंडक और नूर के जलवों को रोशन फरमा। अल्लाह उन सबकी कब्रों में वो फरिश्ते तैनात फरमा जो रोज़ाना सुबह और शाम उन्हें जन्नत का दीदार कराएं। रोज़े महशर के दिन सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में इकट्ठा फरमाकर सबका दाखिला जन्नतुल फरदौस फरमाना। अल्लाह तो रहीम है, करीम है। दुआ है या अल्लाह, जनाब भाई मोहम्मद आसिफ के रिज़्क़ और कारोबार में बरकत फरमाना, भाई सलीम के कारोबार में बरकत फरमाना। या अल्लाह, इनकी घर की औरतों की हिफाज़त फरमाना, घर के बच्चों की हिफाज़त फरमाना, हर बीमारी, हर फातो बला से इन्हें महफूज फरमाना, जो मांगे बिन मांगे दा फरमाना। इनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, इनकी जायज़ दुआओं को या अल्लाह कबूल फरमा कर इनकी सारी मुश्किलात को दूर फरमा, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ता फरमा। जिस तरह दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे परवरदिगार आज के सेटअप को रफ्तारी का एहतमाम किया, या अल्लाह इनकी नेक कोशिश कबूल फरमा कर इनकी रिज़्क़ में बेबहा इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह, तो रहीम है, करीम है। दुआ है कि हम हाज़रीन महफ़िल और नाज़रीन में से अगर कोई बीमार है, हमारे घरानों में रिश्तेदारों को बीमार है, तो तमाम बीमारों का शफ़ाए कुल अता फरमा। अगर हम में से कोई कर्ज़दार है तो कर्ज़ से निजात अता फरमा। अल्लाह, हम सबको 5 वक़्त नमाज अदा करने तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पढ़ने, कुरान समझने तौफ़ीक़ अता फरमा, कसरत तेरा ज़िक्र नबी के ज़िक्र को आम करने तौफ़ीक़ अता फरमा। बस मौला दुआ है कि जब तक सब के सब इस ज़मीन पर रहें, तेरे नूर के सदके चमकते रहें, और जब तक मैं वापसी हो मरते वक्त तेरा मुबारक कलमा तैयबा नसीब हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पाक कलमे की अज़मत सदके या अल्लाह, इन भाइयों ने, भाई सलीम ने और भाई आसिफ ने जो कोशिश की, इनकी नेक नीतियों कबूल फरमाते हुए या परवरदिगार इनके दराजात में इज़ाफ़ा फरमाई। आमीन या रब्बुल करीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुमा।